Hello everyone, welcome back to my channel Maruf Exam Crack. So for class 8 we already done the chapter 1, now it's chapter 2. Alright, so the chapter 2 talks about entertainment. So as we all know that what does entertainment mean, I have already discussed in the classes for you guys, so you can just go through it again in this video. And if you really like this video, do subscribe, do like, and do share with your other friends. So this is for all of you. Alright, so let us discuss again the chapter 2 entertainment, and thoroughly you can understand what the chapter is all about. Alright, so the first thing is that entertainment means what? Anything that make you feel happy. Entertainment are of two types: positive entertainment, negative entertainment. I already discussed about that. Positive entertainment is the entertainment that has done positively, like playing cricket, playing outside, listening to music, might be watching a movie, something that really make you feel happy. Negative, sorry, and negative entertainment is all about there is some kind of negative entertainment people used to do it that you should not just go through it. All right, for example, quarrel, backbitings. People find quite be interesting things while doing all those stuff, but those things are negative, so you can say that these are the negative entertainment. So abusing also a kind of negative entertainment. All right, so the poem is written by Nissim Ezekiel. All right, here is the writer's name. You can just go through it. All right, so दूसरा चीज है यहाँ पे मैंने और everything has been written correctly. So Nissim, the poet born in 1924 and died in 2004. Around 8 years he lived in this war, and the remaining thing is very well. I don't need to describe it. So this is my YouTube channel. Go and subscribe it. So first thing is about the poem. The full name of the poet is Nissim Ezekiel, and born in 1924 and died in 2004. Nationality is Indian Jewish origin. All right, so he is an Indian Jewish origin guy, and famous for what? He is famous for keen observation of Indian society, wrote in English. All right, किस चीज़ के लिए पोएट जो हमारे निसिम एजिकियल हैं वो फेमस थे? ही इज ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी के ऑब्जर्वर थे, रोट इन इंग्लिश. ऑलराइट, उन्होंने इंग्लिश में लिखा था. नोटेबल वर्क्स, उन्होंने सबसे बेहतरीन काम कौन सा किया अपनी ज़िंदगी में? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द प्रोफेसर, एंटरप्राइज. ऑलराइट, दिस आर द थिंग्स दैट ही रोट इट. सो आपको इनको भी जानना ज़रूरी है आपके लिए. अवार्ड्स, उनको क्या अवार्ड्स मिले? He got the award of Sahitya Academic Award and Padma Shri. उनको ये दोनों चीज़ मिला था. So what is a quick overview of the poem? Quick overview क्या है इस poem का, हम लोग वो जान लेते हैं. This poem describe a monkey show. ये poem किसके बारे में बोल रहा है? एक monkey show के बारे में जो सर्कस में होता है. A form of street entertainment once common in India. जो कि कॉमन था पहले ज़माने में, अभी तो दिखाई नहीं देते ये सब. तो एंटरटेनमेंट हुआ रास्ते में होता था कि बंदरों को नचाना, ठीक है, इन इंडिया. A trainer makes two monkeys perform tricks for a crowd. सबको पता है यहाँ पे क्या लिखा है कि एक ट्रेनर जो है मंकियों को नचाता है, ट्रिक्स करवाता है ताकि क्राउड को एंटरटेन कर सके. People enjoy watching, हम लोग इसको देखने में हमें बहुत अच्छा लगता है. And some gives coins, उसके बदले में कुछ लोग उनको रुपया या पैसा देते हैं, pennies. Alright, but the moment of joy is short. लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट होता है शॉर्ट होता है when it is time to pay. क्यों होता है? एंटरटेनमेंट का टाइम जो है वो शॉर्ट तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉर्ट किस बारे में कहा है? जब लोग पैसा देने आते हैं तो कम मिलता है पैसा. जैसे कि 1 घंटा का शो हुआ, कोई 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, कोई उसको 100 रुपया थोड़ी देगा अपने पॉकेट से. तो इस चीज़ को लेके इसमें विवाद है, ठीक है. द क्राउड क्वाइटली डिसअपीयर. तो जब एंटरटेनमेंट जब ख़त्म हो जाता है, बहुत सारे क्राउड जो है वो चले जाते हैं और बहुत कम क्राउड जो है, जनता जनार्दन है, वो पैसा देती है. The poem gently comments on how people enjoy free entertainment but avoid paying for it. ये poem totally किसके ऊपर निर्धारित है? How people enjoy free entertainment. लोग किस तरीके का फ्री, जो freebies कहते हैं, फ्री का एंटरटेनमेंट लेना पसंद करते हैं rather than giving money to it. Alright, rather than paying it. So avoid करते हैं लोग पैसा देना.
होप यू रियली अंडरस्टैंड इस पॉइंट के बारे में क्या था टोटली। लोकेशन क्या है, ए बिजी स्ट्रीट इन सिटी नियर ए मार्केट और रेलवे स्टेशन एरिया। कहाँ पे हुआ था ये एंटरटेनमेंट, बिजी स्ट्रीट था, किसी सिटी में होगा या फिर किसी रेलवे स्टेशन के पास में होता है। टाइम डे टाइम, सुबह के दोपहर के टाइम या फिर डे टाइम, द सन इज शाइनिंग, जब धूप खिलखिला रही हो। मेंशन्ड ग्लीम्स इन द सनलाइट, ग्लीम इन द सनलाइट, ऑलराइट, जैसे कि सूरज बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है, तो समझ लीजिए दोपहर के आसपास। मूड क्या था, लाइवली, देन ऑकवर्ड एंड सैड व्हेन पेमेंट इज अवॉइड। देखिए मूड जो था वो अच्छा होता है जब वो लोग एंटरटेनमेंट शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ऑकवर्ड में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि लोग पैसा देना नहीं चाहते। ठीक है, याद रखिएगा, दिस आर द की पॉइंट्स। अब कैरेक्टर इन द पोएम, क्या क्या कैरेक्टर्स इस पोएम में। सबसे पहला है टू मंकीज, दो मंकी, पेशेंट गर्ल, मास्टर ऑफ सेरेमोनीज, द क्राउड, coolies. Alright, these are the characteristics or characters in the poem. So, two monkey का काम है wearing red and purple pantaloon, baggy trouser. ठीक है, they perform trick, dance, beat drums, crack whips. They are the star performers of the show. ये कौन है, ये दो monkey रियल कैरेक्टर्स है, असली कैरेक्टर है जो एंटरटेन करते हैं लोगों को। और पेशेंट गर्ल किसके बारे में कहा गया है, ए गर्ल विथ सिट्स क्राउचिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सिट्स क्राउचिंग ऑन द ग्राउंड मतलब कि लोग कहते हैं ना अपने मतलब कि पैरों को फोल्ड करके वो बैठी है कहाँ पे, ग्राउंड पे, हाउंचेस। शी होल्ड द स्ट्रिंग ऑफ द टू मंकीज एंड ऑल्सो होल्ड ए बेबी मंकी इन हर आर्म्स। वो दो बंदरों का जो दोड़ी होती, दोड़ी मतलब जिससे बंदर बंधे होते हैं, उनको दो बंदरों का दोड़ी उसके हाथ में है और साथ में एक छोटा सा बंदर उसके गोदी में है। ठीक है, मास्टर ऑफ द सेरेमोनीज कौन है, द ट्रेनर वॉनर ऑफ द मंकीज। मास्टर ऑफ द सेरेमोनीज जो करवा रहा है, ट्रेनर है। ही इज नेकेड टू द वेस्ट, मतलब उसने ऊपर तक कोई कपड़ा पहना नहीं है। ही मीन्स हिज अपर बॉडी इज शोन टू द crowd and he just wearing some kind of pajamas. So I think he beat drums, वो ड्रम्स को बीट कर रहा है, widely crack whips and command the monkeys to perform the trick to earn coins from the crowd. तो ट्रेनर जो है ऑर्डर दे रहा है, या फिर यूँ कह लीजिए कि ट्रेनर बता रहा है किस तरीके से नाटक को करना है, शुरू करना है और ख़त्म करना है, और कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है जो लोग उसको दे रहे हैं। द क्राउड, पीपल हु गैदर टू वॉच द शो। ऑब्वियसली क्राउड क्या है, जो उस शो को देखने के लिए मतलब कि आसपास इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, शो को देखने के लिए। ग्रीन्स व्हेन इट टाइम टू पे, और कुछ क्राउड जो है, ज़्यादातर क्राउड जो है पहले भी हमने डिस्कस किया, वो चले जाते हैं पैसा भी ना देके। कूलीज कौन है, पोर्टर, उगई कैरीज मतलब जो कूली के बारे में हम पता है, जो ट्रेन के स्टेशन में आप लोग देखते हो, जो कि बैग को कैरीज करते हैं अपने सरों पे, हाथ से उठाते हैं आपके सहूलियत के लिए। ठीक है, आप उसको पैसा देते हैं। रेलवे स्टेशन, हु ऑल्सो वॉचेज द शो व्हाइल एंटिसिपेटिंग एक्सपेक्टिंग वर्क। ठीक है, वो लोग भी शो देखते हैं, किस लिए देखते हैं, कि कुछ काम उनको भी मिल जाए। यहाँ से जब लोग चले जाते हैं तो आशा करते हैं कि लोगों को कूली की ज़रूरत होएगा, तो वो लोग कूली को क्या बोलेंगे कि भाई आओ हमारा ये सामान ढो लो अपने सर के ऊपर। ठीक है, सो फॉर दैट उनका काम भी हो जाए, इसी वजह से वो लोग ये शो देखते हैं। अब एक एक सेंटेंस करके हम पढ़ेंगे, एक एक पेरे में क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ द शो, लाइन्स फ्रॉम द पोएम समरी। द मंकी show is on a patient girl on hunches holds the strings, two red monkeys, a baby in her arms. तो इस स्टेंजा में क्या कहा गया है। The poem opens by telling us a monkey show has started on the street. A patient calm girl sits crouching on the ground, hunches is equal to crouching position. She holds the strings attached to the two red colored monkey and holds a baby monkey in her arms. The word patient suggests she is used to this life and remain calm. अब इसमें कहा गया है कि एक लड़की है जो दो बंदरों को पकड़ी है, मैंने पहले भी आपको बताया, उनकी दोड़ी जो है उसके हाथों में है, और एक बंदर है छोटा सा जो उसके गोदी में है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट का मतलब क्या है। पेशेंट का मतलब हम लोग जानते हैं जो रोग से रोगांतिक है, मतलब कि जो बीमार आदमी है, लेकिन इसमें बीमारी के बारे में नहीं बोला है। Remember that one, no? It is not talking about the patient that is suffering from some kind of disease or something. All right, it is talking about the patient who is suffering from poorness. All right, इसमें कहा गया है कि ये पेशेंट
किस चीज़ का पैशन है? गरीबी का पैशन है, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शांत बैठी है अपनी गरीबी हालत में, क्योंकि इस गरीबी से उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोग कहते हैं ना, व्हेन यू जस्ट try to adjust in some new places, you really become a little bit exhausted or frustrated. You don't want to get adjust on that place, but as how the time passes, you started to adjust with that places. This is some kind of thing that happening with that girl, because she is now adjust with the poorness that she is suffering from a long period of time, to be honest. All right, तो यही कहा गया। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा है? द ट्रेनर अपीयर्स। द ट्रेनर अपीयर्स लाइन में क्या है? लाइन फ्रॉम द पोएम, इन रेड एंड पर्पल pantaloons the crowd collect naked to the waist, the master of the ceremonies drum frenzy crack whips call the tricks to earn applause and copper coins. तो इसमें यह कहा कि the monkey are dressed in bright colored trousers, पैंटालून्स, जो बंदर हैं उनको भिन्न तरीके के रंग बिरंगे कपड़ों से सजा के रखा है। पीपल बीइंग टुगेदर, जो आकर्षण का मार्गदर्शन है। ठीक है, मार्गदर्शन है, जिससे लोग जो क्राउड है आकर्षण होते हैं उसके तहत। ठीक है, उस नाटक के तरफ उन मंकियों के वजह से उनके जो रंग बिरंगे कपड़े वो लोग पहने हैं। द ट्रेनर हैज हिज अपर बॉडी हिप बेयर। मैंने पहले भी कहा था, जो ट्रेनर है उसका जो मतलब कि धड़ है वो उसमें उसने कपड़े नहीं पहने हैं। ही बीट्स द ड्रम वाइडली, उसने ड्रम को जोर जोर से बजाया। फ्रेंजी विल्ड एक्साइटमेंट, वाइल्ड एक्साइटमेंट। फ्रेंजी का मतलब क्या है? वाइल्ड एक्साइटमेंट यहाँ पे दिया है, मैंने आपको इसका मतलब भी दे दिया। क्रैकर whips and command the monkeys what trick to perform. His goal is to earn applause and copper coins. Copper coins were of very low value, showing the performance earns very little for all his hard works. अब इसमें ये कहा है कि देखिए कि ये जो मतलब कि जो सेरेमोनियल जो ट्रेनर है उसने क्या कपड़े पहने हैं, मंकियों ने क्या कपड़े पहने, उसका काम क्या है कि बंदरों को नचाना और क्राउड को इकट्ठा करना। तो क्राउड को अच्छा लगा, क्राउड जो है, जो लोग आते हैं वो देखने के लिए, उनको अच्छा लगता है ये नाटक। लेकिन सबसे ज़्यादा संगीन चीज़ जो हम इस चीज़ में देखना चाहते हैं वो ये है कि जो क्राउड आते हैं वो लोग पैसा नहीं देते, और ये कह रहा है कि उनको कॉइन्स मिलता है, वो भी क्या? कॉपर कॉइन्स। उन कॉपर कॉइन्स का कोई वैल्यू भी नहीं है इतना मार्केट में, फिर भी लोग देने में दे बिकम रियली चीप टू प्रोवाइडिंग दोस कॉइन टू दोस ड्रामाटर्स, ऑलराइट, जो ड्रामा कर रहे हैं। सो क्यों नहीं करते? इसके बारे में हम सबको पता है कि कंजूसी एक चीज़ है जो अपने सहूलियत के हिसाब से लोग करते हैं। तो इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए कि आप कुछ दो ही ना, कुछ एंटरटेन हो रहे हो तो उसके बदले कुछ दो, क्योंकि वो बंदा पूरे दिन से मेहनत कर रहा है आपको इस चीज़ को दिखाने के लिए आपको, और आप लोग इकट्ठे हैं एक जगह पे, लेकिन आप भी फिर भी उसको पैसा नहीं दे रहे, तो इतना कंजूसी भी ठीक नहीं है। ठीक है, जो लास्ट स्टैंजा है, लाइन फ्रॉम द पोएम समरी है, सम इन सेम part with the smallest coin they have. The show moves on, the crowd dissolves, the baby begins to cry, and suddenly the monkey are sad. Only the monkeys are sad. Only the monkeys are sad. Gleam in the sunlight, the white-teeth grains at me. इसका मतलब क्या है? देखिए, only some people feel a little ashamed. उनमें से कुछ लोग हैं जो शर्मसार होते हैं, मतलब कि उनको शर्म आती है। Give the smallest coin they have. क्यों उनको अफसोस होता है कि भाई मेरे पास इतना ही है, काश मैं और दे पाता, होता है ना। लेकिन देखिए, कोई आपसे मांगने आया और आप कंजूस नहीं है, आप उसको देना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास उतना ज़्यादा पैसा है नहीं कि आप उसको दे पाए। आपको देना था 100 रुपया, लेकिन आपके पॉकेट में सिर्फ 10 का एक कॉइन है, आपने 10 का कॉइन दे दिया, लेकिन आप अफसोस कर रहे हैं कि काश मेरे पास होता तो मैं दे देता। ऐसे भी लोग हैं। सो कुछ पीपल अशेम्ड फील करते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं इतना ही दे सकता हूँ, दे रहा हूँ, बुरा मत मानना। Part with means to give away something unwillingly. The show then moves on to another spot. The crowd disappear quietly. The baby monkeys start crying. Suddenly the monkey looks sad. The phrase only the monkeys are sad is very powerful. The human feel nothing while the animal feels sadness. Gleam in sunlight. The white teeth grains at me. Someone grains at the poet with teeth shining in bright sunlight, adding to the mixed emotion of the scene. Alright, तो इसमें कहा गया कि
लोगों को इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानवरों को भी पता चलता है कि ये आदमी दुखी है या सुखी है। ठीक है, तो पॉइंट इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि गरीबों पे कोई रहम करता नहीं, गरीबों के कोई दुख को देखने वाला नहीं, लेकिन जानवरों को भी पता है कि मेरा मालिक जो है वो गरीबी से या फिर कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है। अब इतनी कड़ाके के धूप में सिर्फ एक ही चीज को आपको महसूस होएगा, वो ये है कि उनके जो दांतें हैं, फील नथिंग वाइल द एनिमल्स फील सैडनेस ग्लीम सनलाइट द व्हाइट टिन ग्रेन्स एट मी। उन्होंने कहा कि जो दांतें हैं वो चमक रहे हैं सूरज के रोशनी के वजह से, और उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आशा और भरोसा ही है। ठीक है, तो सिर्फ इमोशन है जो जो कि वो लोग व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशन उनको खाया जा रहा है। तो एक्सपेक्टेशन होता है, ऐसे ही जिंदगी में भी ऐसा ही है कि यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, समटाइम योर एक्सपेक्टेशन रियली गेट shatter away, but the thing is that you should not just stop yourself from doing the right thing. Inshallah one day you will gonna be success. Believe in the reality, believe in Allah, that and do your hard work as much as possible as you can. The remaining thing is up to Allah. So never lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Follow the right path of the Rasulullah. Inshallah you will be successful, and that is the most important thing. Don't trust any people, because people are not all, but never